This recording has been started. So now all of you, I think you can see my screen. The students who are attending through Teams, can you see my screen? Sir. Yes, sir. देख सकते हैं? ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में मैंने ये ER2 रिलेशनल ये PDF आप लोगों से शेयर किया था. ठीक है, आपने देखा है ये? शायद देखा नहीं होगा. I can understand. So let us see that what are the remaining rules. Okay. So one rule that I explained was, what is the case? Students, please listen. Settle down. What is your name? Huh? Vishes. Okay. So see here. So in case of simple attributes, okay, you have to just write the attribute names as is done here. But in case of composite attributes, you have to include the simple components like fname, mnit and lname of the composite attributes. Okay, this is the case. Now let us see that what are the other rules. Okay, so this was the year diagram and this was done. So yes, this was the year diagram. Please let me show you again. So you can see that what are the simple attributes, simple entities, sorry, not simple entities, strong entities, employee, department. Is it visible? सिंपल एंटिटी, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन कौन सा था? रेगुलर एंटिटी, एम्प्लॉय था, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट था, और तो एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट. ओके, बिकॉज ये डिपेंडेंट्स ऑफ जो है, इसमें जो डिपेंडेंट है ये कौन सा एंटिटी है? नीचे डिपेंडेंट जो है ये वीक एंटिटी है. वीक एंटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डबल रेक्टेंगल है और इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है. देखो इसमें नेम है डिस्क्रिमिनेटर. तो हमारे पास अभी कितना टेबल्स बनना चाहिए? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 3 टेबल बनना चाहिए. जितने स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं उतने टेबल्स बनना चाहिए. तो एक टेबल्स होगा एम्प्लॉय के लिए, एक टेबल होगा डिपार्टमेंट के लिए, और एक टेबल होगा किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है. सो अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसका जो भी कंपोनेंट्स था, दैट मीन्स जो सिंपल एट्रीब्यूट्स था वो लेके हम लोग टेबल बनाए. ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसमें. सो एम्प्लॉय टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है वो एफ नेम, एमनिट, एल नेम, दैट मीन्स लास्ट नेम, एसएसएन, बी डेट, एड्रेस, सेक्स, सैलरी, ये सब सिंपल एट्रीब्यूट था. अभी हम सुपर एसएसएन और डी नंबर में नहीं जाएंगे. ठीक है. तो अभी जो टेबल बनेगा इसमें ये एंटिटी, सॉरी, ये एट्रीब्यूट्स इंक्लूड कर लेंगे हम, बिकॉज दीज वर सिंपल एट्रीब्यूट्स. ओके. सिमिलरली डिपार्टमेंट में देखो, डिपार्टमेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट सिंपल था? डी नेम था और डी नंबर था, जिसमें डी नंबर हमारा प्राइमरी की था, तो इसको हाईलाइटेड किया गया है. सो ये इंक्लूड होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ओनली. नाउ फॉर नाउ skip this MGR SSN, that means manager SSN number, and manager start date. MGR start date means manager start date. Okay. Now for in case of project table, P name, P number and P locations have come. Okay, and among these, which one is the primary key? It is P number. Okay. Now apart from these 3 tables, there will be no other entries, okay, in the table. Now let us see the second rule. Second rule, first rule was for strong entities. Okay, second rule is for weak entity. So strong entity को हम क्या बोलेंगे? E. उसके लिए जो रिलेशन का नाम होगा that is R. Okay, weak entity type को हम क्या बोल रहे हैं? W. For each weak entity type W. Now how many weak entity sets are there in our year diagram? Only one, dependent. Create a relation R. That means for that weak entity we have to create a separate table. Okay, and include all simple attributes and simple components of composite attributes of W as attributes of R. Okay, so in that diagram, let us see that in that diagram, if
suppose that this is for an example. If this is a entity, suppose W, okay, and it has some A, B, suppose that B is a composite attribute, it has B1, B2 and B3, and suppose that there is C and there is D. Then for this weak entity set we have to create another table. Okay, now what is the table name? What will be the table name? Can anybody tell me? Yes, table name will be the name of the entity, which is W. Okay, and attributes will be B1. If simple attributes are there, then simple attributes will be written as it is. But since B is a composite attribute, so इसलिए B के जो simple components है जो कि B1, B2 और B3 है उसको include करना पड़ेगा. So B1, B2 और B3 include करो. साथ ही साथ और क्या include होगा? C and D. कौन सा skip किया मैंने अभी? A. A को क्यों skip किया? क्योंकि A will contribute in making the key. हाँ, प्राइमरी की, बट A itself is not the primary key. So अब बताओ मुझे कि A किसके साथ कंबाइन होकर की बनाएगा? Yes. So ये W जो भी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड है, उस आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ इसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, सपोज करो कि दिस एंटिटी नेम इज S. So इस S के जो प्राइमरी की होगा, suppose that S1 is the primary key, so that will be included here. Okay, so what will be included? Identifying relationship के साथ जो strong entity set है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है owner entity. What is the name? Owner entity. So इस owner entity के जो प्राइमरी की है, that will be added in the table along with the discriminator. Now which one is the discriminator? Discriminator is A. Which one is the primary key of owner entity? S1. Now which one be the key of this W table? A and S1 together, both. So this sir, rule could you is explain clear? the last part again, sir? Could you explain the last part again? क्या क्या? Could you explain the last part again? हाँ, लास्ट पार्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं. तो लास्ट पार्ट को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो वीक एंटिटी सेट है जिसके लिए हमने अभी टेबल बनाया है, नाउ दैट वीक एंटिटी सेट शुड बी रिलेटेड इन ए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. नाउ द पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विच इज अगेन रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफाइंग रिलेशन is called the owner entity set of the W. So in this case, S is the owner entity of W because S is the strong entity set. So we have to include the primary key of the owner entity, which is S1, and the discriminator of the weak entity set for which this table is being created. ये W के लिए टेबल क्रिएट किया जा रहा है, तो W का जो डिस्क्रिमिनेटर होगा जिसके नीचे डॉटेड लाइन होगा, ये A एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, और S एंटिटी सेट के जो प्राइमरी की है S1 इसको ऐड करेंगे, और इस टेबल में दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये समझाने के लिए कि नाउ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल W इज A and S1. So in DDL statement in SQL workbench, whenever you will create the table, in case of primary key, you have to just separately write primary key within bracket A, S1. That's all. Okay. इसके अलावा बाकी सब इसके डेटा टाइप वगैरह जो रहेगा वो रहेगा, बट A और S1 में आपको कंस्टेंट यूज करना है नॉट नल एंड नॉट नल, एंड लास्ट में प्राइमरी की के बाद ब्रैकेट देखे A, S1. नाउ दिस पर्टिकुलर की विल बी कॉल्ड एज सरोगेट की. ओके, एंड in this case, A and S1 together will uniquely identify each tuple of this relation W. Is this thing clear? Shall we proceed? Students जो online attend कर रहे हो, shall we proceed? Yes, yes, sir. Okay. So let us see that what is the effect of this rule. So effect of this rule is this, that डिपेंडेंट के लिए एक टेबल बनाया गया है जिसमें ESSN एंड डिपेंडेंट नेम ये दोनों एक साथ मिलकर की बनाया है, बिकॉज
In case of dependent, dependent name was the discriminator and SSN is the primary key of the employee relation. Let us go back to the ER diagram, then it will be more clear. Now see the ER diagram. Employee, okay, employee के साथ SSN है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और उसके साथ क्या है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, क्या है एम्प्लॉय के साथ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है डिपेंडेंस ऑफ, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग एंटिटी कनेक्टेड, सॉरी जिसके साथ वीक एंटिटी कनेक्टेड है डिपेंडेंट, सो डिपेंडेंट नेम इज द डिस्क्रिमिनेटर। इसके साथ क्या आया है एम्प्लॉय का एसएसएन, तो इसको ईएसएसएन नाम दे दिया गया है, दिस इज जस्ट अ नेम। ओके, सो ये देखें ये बनाया गया है टेबल। सो नाउ लेट अस गो बैक टू द टेबल। टेबल देखो ईएसएसएन एंड डिपेंडेंट नेम दोनों एक साथ हुआ है। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया सेम टू सेम, वीक एंटिटी के डिस्क्रिमिनेटर एंड ओनर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के प्राइमरी की एक साथ मिलके हमें नया प्राइमरी की मिला। ओके ओके, लेट अस गो बैक टू द लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। नाउ ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट, है ना, ये तो एंटिटी के लिए हो गया। अब हम देखेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कितने टाइप का होता है, 1:1, 1:n एंड m:n। 3 types of cardinalities are there. Now we will see binary 1:1 relationship type. Okay, binary means 2 entity types will be associated. One entity will be termed as S and another will be termed as T. So identify the relation S and T that correspond to the type participating in R. कोई सा भी एक रिलेशन ले लेंगे, उस रिलेशनशिप में जो दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी रहेगा उसको एक को बोलेंगे हम S, दूसरे को बोलेंगे हम T. Okay, now choose one of the relations, say S, and include as foreign key in S the primary key of T. Is this clear? Not clear ना? S और T जो, अच्छा चलो अभी हम एग्जांपल देंगे, लेकिन पहले एक बार रूल पढ़ लेते हैं। It is better to choose an entity type with total participation in R in the role of S. अब देखो एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज करो दिस इज वन रिलेशनशिप R एंड इसमें इस तरह का डायग्राम है। ओके, और इस साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है, इसमें पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, अब मुझे बताओ कि इनमें से मैं S कौन सा एंटिटी को बोलूं और T कौन सा एंटिटी को बोलूं। सो अकॉर्डिंग टू द रूल it is saying that it is better to choose an entity type with total participation in R in the role of S. जिस साइड में टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा उसको तुम क्या बोल दोगे S, जिसमें पार्शियल रहेगा उसको क्या बोल दोगे T। ये सिंपल रूल है ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो इसमें बोलो लेफ्ट साइड वाले को हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे S, राइट साइड को क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल। ये T बोला है ना। अब क्या करना है हमें, include the simple attributes of the 1:1 relationship type R as attributes of S. Okay, so अब क्या करना पड़ेगा कि R के अगर कोई एट्रीब्यूट होता है, सपोज करो कि इसमें R1 या R2 कुछ अगर होता है, तो इसको किस में इंक्लूड करना है, किसके टेबल में इंक्लूड करना है, S के टेबल में इंक्लूड करना है। ओके, that is what the rule is saying. Include the simple attributes of the 1:1 relationship type R as attribute of S. R मतलब रिलेशन, इसमें एंटिटी के बात हो ही नहीं रहा है। एंटिटी कितने हैं, दो, S और T। रिलेशनशिप कितने हैं, एक, R। इसीलिए इस रिलेशनशिप को बोला जाता है कौन सा रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, बिकॉज दो एंटिटी इसके साथ कनेक्टेड है। बाई मीन्स टू। S लेंगे जो टोटल पार्टिसिपेशन साइड है उसको S बोलेंगे, जो पार्शियल है उसको हम बोलेंगे T। रिलेशन के अगर कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें, S के साइड में। यहां तक ये समझ में आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ बोथ पार्टिसिपेशंस आर टोटल वी मे मर्ज द टू एंटिटी टाइप्स एंड रिलेशनशिप्स इनटू अ सिंगल रिलेशन। अगर ऐसा हो जाता है कि सपोज करो कि यहाँ पे एक रिलेशन है, सॉरी एंटिटी है ये, और यहाँ पे एक है, और इसमें यह दोनों साइड टोटल है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम एक ही टेबल बनाएंगे।
ओके, एक ही टेबल बनाएंगे और S और T को मर्ज कर देंगे हम, S और T को हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। We may merge the two entity types and the relationship into a single relation। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर अगर इसका कोई एंटिटी, इसका कोई अगर रिलेशनशिप सॉरी एट्रीब्यूट होगा R1 या R2 अगर इसका हो तो ये कहाँ पे आएगा, ये भी ये सेम टेबल में आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो अगर एक साइड टोटल पार्टिसिपेशन है तो उस साइड को तुम S बोल दो, अगर नहीं है दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन है तो दोनों को मतलब तीनों को एक साथ मर्ज कर दो, दोनों एंटिटी और रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। सो डिपार्टमेंट में मैनेजर एसेसन और मैनेजर स्टार्ट डेट एक साथ आ गया है। क्यों आया है देखो, इसके लिए हमें ईयर डायग्राम में जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, समझ आ रहा है, डिपार्टमेंट है और 1:1 रिलेशनशिप देखना है हमें, है ना। 1:1 रिलेशनशिप कहाँ पे है, कौन सा रिलेशनशिप है 1:1? मैनेजर्स, वेरी गुड। इसमें 1 है, सॉरी इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, देखो देख लिया। तो इनमें से एस साइड कौन सा होगा, डिपार्टमेंट होगा एस। तो डिपार्टमेंट के टेबल में क्या जाएगा, ये स्टार्ट डेट जाएगा, गया देखो। तो फिर रूल सेटिस्फाइड हुआ, रूल क्लियर हुआ। सो 1:, हाँ, तो मैनेजर एसेसन एंड मैनेजर स्टार्ट डेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैनेजर एसेसन जो आया है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इसके अलावा और कुछ है इसमें 1:1 रिलेशनशिप, और कुछ था इसमें देखो, ईयर डायग्राम में देखो 1:1 और कुछ नहीं है ना। ये जो यहाँ पे जो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना यहाँ पे, ये होगा M, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना M, ठीक है। सो लेट अस गो बैक टू द नेक्स्ट रूल। सर एस में इंक्लूड हो गए ना सिंपल एट्रीब्यूट? हाँ, सिंपल एट्रीब्यूट S में इंक्लूड होगी, ठीक है सर। S में ही हुआ है। देखो डिपार्टमेंट को S हम बोलेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट साइड टोटल पार्टिसिपेशन था तो इंक्लूड हुआ है। अब देखो, तो इसके लिए नया टेबल क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर रेगुलर बाइनरी 1:n रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में रेगुलर रिलेशनशिप मतलब कौन सा रिलेशनशिप होता है, आप बता सकते हो, आप सो रहे हो। रिलेशनशिप में रेगुलर रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप दैट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अदरवाइज अगर एक वीक एंटिटी सेट होता है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है तो उसका नाम क्या होता है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर दिस, आइडेंटिफाई द रिलेशन S that represents the participating entity type at the end side of the relationship type। ओके, सो इस रूल का मीनिंग क्या है, इस रूल का मीनिंग ये है कि सपोज दैट दिस इज वन रिलेशनशिप, sorry this is one entity, this is another entity and this is one relation, and here there is one and here is n, so this is which type of entity, which type of relation, binary 1:n relationship। तो जो n साइड में जो एंटिटी होगा उसको हम s बोलेंगे, जो वन साइड में होगा उसको हम बोलेंगे t, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, include as foreign key in S the primary key of the relations T that represents the other entity type participating in R। तो that means T के सपोज करो कि यहाँ पे है T1, यहाँ पे है T2 और यहाँ पे है T3, और S में है सपोज करो S1, S2 and S3। S1 is the primary key and here it is T2 is the primary key। तो इसमें क्या होगा, जो टेबल बनेगा वो S साइड के टेबल बनेगा, इसमें S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा और क्या आएगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स T1, T2, T3। T1, T2, T3 यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है ओनली T2 एंड T2 विल बी व्हाट, व्हिच टाइप ऑफ की, फॉरेन की, Foreign key। T2 विल बी फॉरेन की, बिकॉज T2 के नीचे यहाँ पे तो अंडरलाइन नहीं है, बट T का जो टेबल बनेगा उसमें T2 will serve as the primary key। Is that clear? Similarly ये 1:1 रिलेशनशिप में भी यही था,
इसमें भी जो एस साइड के टेबल होगा इसमें R1 R2 का ऐड होगा तो जरूर, बट टी के जो प्राइमरी की होगा, सपोज करो T1, वो भी एज ए फॉरेन की ऐड हो जाएगा। ठीक है। नाउ इंक्लूड एनी सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ द 1:n रिलेशनशिप टाइप एज एट्रीब्यूट्स ऑफ एस। तो दैट मीन्स इसमें ये भी बोला गया है कि अगर इस रिलेशनशिप का कोई अगर एट्रीब्यूट होगा, सपोज करो एस, सॉरी सपोज ये अगर आर है तो इसमें अगर ये R1 होगा कुछ, तो इस R1 को भी एस का जो टेबल होगा उस एस के टेबल में ऐड करना होगा। ओके, नाउ दिस इज द थिंग। 1:1 रिलेशनशिप में एक बार दोबारा जाओ, एक बार विजिट करो, इसको रिविजिट करो। इसमें देखो फॉरेन की क्या करना है, हाँ, चूज वन ऑफ द रिलेशंस एस एंड इंक्लूड एज फॉरेन की इन एस द प्राइमरी की ऑफ टी। तो दैट मीन्स इसमें जो एग्जांपल है इसमें तुम लोग शायद स्किप कर गए थे कि ये जो टेबल बनेगा, सॉरी इस केस में जो टेबल बनेगा इसमें 1:1 है ना। तो इस केस में S के लिए जो टेबल बनेगा उस टेबल में S के खुद के एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही। सपोज करो S1, S2 और S3 है, इनमें से S1 इज द प्राइमरी की, तो S1, S2, S3 ये तो होगा ही, जिसमें S1 होगा प्राइमरी की। साथ ही साथ क्या होगा बताओ, R1, R2 एंड T1, वेयर T1 विल बी द फॉरेन की। ठीक है, समझ गए। और ये सेम रूल है, ये फॉरेन की वाला जो रूल है ये सब के लिए सेम है। दैट मीन्स 1:n के लिए भी जो है 1:1 के लिए भी वही है रूल। ठीक है, हाँ। R1 was the attribute of relation. Okay, R1 is the attribute of relation. Okay, इसको अच्छे से लिख दो R1. Okay. अब इसमें सपोज करो कि इफ बोथ पार्टिसिपेशंस आर टोटल वी में मर्ज द टू एंटिटी, सॉरी ये तो बोल दिया था मैंने, अब 1:n के लिए बोलते हैं। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें n साइड जो है वो n साइड में क्या आएगा, s आएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब दोबारा जाओ ईयर डायग्राम में जाओ, ईयर डायग्राम में जाके देखो कि 1:n कौन सा है। 1:n ये है, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप, तो इसमें s कौन सा होगा, एम्प्लॉय। s साइड में क्या ऐड होगा, डिपार्टमेंट का प्राइमरी की। ओके, ठीक है, और कौन सा है 1:n, ये कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में 1:n, तो s कौन सा एंटिटी होगा, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में फॉरेन की कौन सा होगा, नेम नंबर। ओके, दोनों एक साथ प्राइमरी की है ना, नेम नंबर। ओके, और कौन सा है 1:n, ये 1:n है, बट ये वीक एंटिटी सेट है तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे अभी, है ना। ओके, हाँ, सेल्फ जो रिलेशनशिप है इसके लिए भी होगा। ये एन साइड जो होगा दैट मीन्स एम्प्लॉई होगा, इसी में क्या होगा, सुपरवाइजर एसएसएन हो जाएगा वो फॉरेन की, बिकॉज ये यूनरी रिलेशनशिप है। यूनरी रिलेशनशिप के जो एम्प्लॉय टेबल होगा वही एस होगा और वही टी होगा, बट फिर भी तुम्हें क्या करना है कि जो एन साइड है जिसका लेजेंड क्या है, सुपरवाइजी, दैट मीन्स सेम टेबल में जैसे एसएसएन है तुम्हारा प्राइमरी की, सुपरवाइजर का भी तो एक एसएसएन होगा, उसका नाम सपोज करो कि सुपरवाइजर एसएसएन। तो सुपरवाइजर एसएसएन विल बी एक्टिंग एज द फॉरेन की ऑफ द सेल्फ टेबल, तो उसमें सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें रूल भी आएगा, उस टाइम पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सुपर एसएसएन नंबर आया है, जो मैं अभी बोल रहा था, सुपर एसएसएन नंबर और डी नंबर दोनों ऐड हो गया है। यहाँ पे डी नाम ऐड हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ M:n रिलेशनशिप में देखो, M:n रिलेशनशिप जहां पे भी होगा वहां पे एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू रिलेशन S। ओके, अभी तक हम लोग न्यू रिलेशनशिप किस किस के लिए क्रिएट किए हैं, बता सकते हो कोई,
स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए क्रिएट किया है, वीक एंटिटी के लिए क्रिएट किया है, रिलेशनशिप के लिए कुछ क्रिएट नहीं किया है। अब हम क्रिएट करेंगे, अगर M is to N रिलेशनशिप है तो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू रिलेशन S टू रिप्रेजेंट R, include as foreign key attributes in S the primary keys of the relations that represent the participating entity types. Their combination will form the primary key of S. Also include any type of simple attribute of the M is to N relationship type as attributes of S. So let us go back to the diagram. So in this diagram you can see that this works on relationship is the M is to N relationship. ओके तो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप टाइप के लिए एक अलग से टेबल बनेगा, उस टेबल का नाम क्या होगा, नाम होगा वर्क्स ऑन, और इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, इस रिलेशनशिप में जो जो एंटिटी एसोसिएटेड है उन दोनों एंटिटीज के प्राइमरी कीज। दैट मीन्स प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, नेम और पी नंबर, और एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, SSN, और ये तीनों एक साथ क्या होगा, प्राइमरी की होगा वर्क्स ऑन रिलेशन का। इसके अलावा क्या होगा, ये आवर्स ऐड हो जाएगा, बिकॉज आवर्स इज द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। सिंपल सा रूल है। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द 1:n M:n रिलेशनशिप। सो देखो SSN और P नंबर। ओके, तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आप लोग नोट करना है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन ये है, जैसे यहाँ पे वर्क्स ऑन रिलेशनशिप में यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है ना, तो ये होगा M, और प्रोजेक्ट में नेम प्राइमरी की नहीं है, है ना, नहीं है, इसको ओमिट करना, बिकॉज नेम प्राइमरी की होता तो नेम भी उस टेबल में आता, उस टेबल में नहीं आ रहा, दैट मीन्स नेम इज नॉट अ प्राइमरी की। एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट में भी नेम इज नॉट अ प्राइमरी की। ओके, मैं जूम करता हूँ। डिपार्टमेंट में नेम प्राइमरी की नहीं है, डिपार्टमेंट में ओनली नंबर जो है वो है प्राइमरी की। ओके, सो ये मॉडिफिकेशन, ये थोड़ा अपडेट है, नोट कर लेना आप लोग। सो अभी मुझे बताओ कि नया टेबल कब कब क्रिएट किया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तब, अगर वीक एंटिटी सेट है तब, और M:n रिलेशनशिप है तो क्रिएट किए हैं हम लोगों ने। बाकी अगर 1:1 रिलेशनशिप है तो फिर हम क्रिएट नहीं किए हैं, 1:n में भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए क्या करेंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब कौन सा था, कैसे रिप्रेजेंट होता है, डबल ओवल। जैसे इसमें मुझे बताओ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है, हियर लोकेशंस is a multi-valued attribute. Now we will see that how to map this multi-valued attribute in a table. Okay, let us see that. Create a new relation R that includes, that means create a new relation R, that means we have to create a table for the multi-valued attributes also. तो अभी हमने नया जो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा वो किसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, एक वीक एंटिटी के लिए, एक M:n रिलेशनशिप के लिए, और किसके लिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक अलग से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स एन एट्रीब्यूट करेस्पॉन्डिंग टू A, दैट मीन्स A खुद तो एक एट्रीब्यूट है, वो नाम तो ऐड होगा ही होगा उस टेबल में, उसके साथ क्या होगा, द प्राइमरी की एट्रीब्यूट K as the foreign key in R of the relation that represents the entity type of relationship that has A as an attribute। ये काफी लंबा रूल बता दिया है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चलो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा बताओ, the primary key of R is the combination of A and K. If a multi-valued attribute is composite, we include its components. इसका मतलब क्या बोला वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Suppose that this is an attribute, this is an entity, suppose that this entity name is T, and T has T1 as primary key, T2 is a simple thing, and this T3 is a multi-valued attribute। इसको हमें मैप करना है। मैप जो करेंगे
एक टेबल बनेगा, टेबल का नाम क्या होगा, T3, मतलब T_T3 ऐसे कर दो। ये T3 किसका है, T के है, तो इसलिए T_T3 कर, दिस इज जस्ट अ नेम, वट एवर नेम यू कैन चूज, दिस इज अप टू यू। सो T_T3, इसमें क्या ऐड होगा, T3 तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही साथ T3 जिस एंटिटी के एट्रीब्यूट है उस एंटिटी के जो प्राइमरी की है वो, which is T1. Now this T1 and T3 combinedly will act as primary key of the T_T3 relation. Now if I ask you that which one is the foreign key of this T_T3 relation, T1. Okay, so primary key of this relationship is what, T3 comma T1. Okay, but the foreign key is T1 which references T1 of T relation. Is that clear? कोई question अभी तक, कोई doubt? Could you repeat, sir? एक बार रिपीट। Okay, how it can be foreign key? Okay, I am repeating. जो online attend कर रहे हैं वो लोग मुझे एक बार repeat करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा question जो है विशेष का वो है कि how it can be a foreign key. So we have to understand that we have to create a relation. So this is not a weak entity set, this is a strong entity set. We have to create a relation for T and we have to create a relation for this T3 which is a multi-valued attribute. Now for T, which attributes will come, T1, T2, T3 नहीं आएगा, इसमें T3 नहीं आएगा, T1 एंड T2 आएगा, जिसमें प्राइमरी की क्या होगा, ओनली T1। अब हमने क्या किया, विशेष मोबाइल पे नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ देखो, सो T3 जो है T_T3 जो है, इसके लिए हमने नया टेबल क्रिएट किया और उसमें T3 इंक्लूड किया और T का जो प्राइमरी की है उसको इंक्लूड किया। सो इस टेबल के प्राइमरी की क्या है, T टेबल के, it is T1. Now T1 and T3 combinedly is the primary key of T_T3 table. Now T1 is the foreign key. Okay, T1 is the foreign key. So T1 is the foreign key which is referencing to this T1 of the T relation. तो T1 अकेला इस T_T3 टेबल का प्राइमरी की नहीं हो सकता, बट T1 अकेला T टेबल के प्राइमरी की है। सो T1 टेबल को T_T3 में क्या बोलेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट बोलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, बट T1 is not primary key. T1 is alone not primary key. So which one is the primary key? Primary key of T_T3 is a composite key which is T3 comma T1. Now which is the foreign key? What is the definition of a foreign key? Foreign key of a table is an attribute which serves the purpose of a primary key of some other relation. Now which one is the other relation here? T. तो T टेबल में T1 प्राइमरी की हो रहा है, तो इसलिए T1 is the foreign key. Is that clear? Students जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, is that clear? Yes, sir. चलो I proceed. think I understood. अमोक विजू क्या बोल रहे हो? I think I understood. Okay, you think you understood. Okay. Good. Huh? Uh-huh. Because you have to create a separate table for T3, na? So that is why. No. Generally, you cannot write because there is no rule like that. What is the rule for this strong entity? See, here, this is the rule number 1. You have to include all the simple components of attributes. So since this is not a simple attribute, so you cannot include, okay? अच्छा, अब दूसरा एक वेरिएशन ये है, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि suppose that T3 is a multi-valued attribute as well as it is a composite attribute. It can be the thing like if T3 is a mobile number, then you can break it as country code and the number, जैसे ISD कोड
क्या होता है +91 एंड देन वो 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, देन मोबाइल नंबर, ठीक है, होता है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जो T3 का टेबल होगा, T3 में T3 ऐड नहीं होगा, इंस्टेड ये ऐड करोगे CC एंड MN, और यहाँ पे तीनों के नीचे अंडरलाइन लगाओगे। इज दैट क्लियर? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सर हाँ सर बोलो। बेसिकली सर जो बेसिकली हमने टेबल बनाया है T_T3, हाँ हाँ मतलब सर यही तो सर यहाँ पे जो एक टेबल है T, ये मतलब ये एक दूसरे को रिलेट क्यों कर रहे हैं सर, जबकि हमको T_T3 बनाना है। हाँ, T को हमें T_T3 के साथ रिलेट इसलिए कर रहा है ताकि हमारे पास टोटल एक क्लियर पिक्चर आए कि इस टेबल का फॉरेन की कौन सा है और वो फॉरेन की रेफर किसको कर रहा है। बिकॉज ऑल्दो आई एम शोइंग यू एज ए पार्ट step by step, but whenever you will create the database, you have to create all the tables, na? For the year diagram, यस which is सर, mentioned here, so you will get a number of tables. तो सारे टेबल्स में कौन सा फॉरेन की होगा, कौन से टेबल के साथ कौन सा फॉरेन की किस रिलेशन में रेफर करेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस T and T3. Now, why I am mentioning T? Because So, T is the owner entity of this T3 attribute. हाँ, any query? सर एक डाउट था, हाँ हाँ, क्या डाउट है? अगर T3 को अगर हम हटा देंगे तो फिर वहाँ पे प्राइमरी की सिर्फ T1 रह जाएगा, जैसे आपने अभी कंट्री कोड और वो डिवाइड किया था। हाँ, सपोज करो कि ये T3 इस यहाँ पे नहीं है, तब इशिता यस सर, यस सर। अगर T3 यहाँ पे नहीं होता तो फिर इस टेबल का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके सर, ठीक है, हाँ फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर T1 वुड बी फर्क प्राइमरी। मतलब क्या, उसमें तो फिर फॉरेन की लाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। देयर इज Yes, नो sir. स्कोप ऑफ establishing this foreign key constant. Okay, so Okay. since T3 is not there, so you don't need to create any extra table. So उस केस में only T के साथ T1 and T2 हो जाएगा बस, that's all. It is fine. ओके सर। Okay, okay, let us go to the next rule. Okay, oh sorry, next rule में हम next class में जाएंगे। अभी CR साहब हमें बता दिया है कि सर your time is over, so आप अब जाओ ना। So let us stop here and